Assalamu alaikum everyone. Can you hear me please? All right, I've got few yes in my chat box. So that's the way we do it. Okay. All the questions and all the things are should be done through the chat box. Okay. So we'll be starting in couple of minutes as this is the first class. Let us allow people to join. Voice quality के हवाले से कुछ गुजारे लाइक ही होगा of course. Lots of issues in internet. Yes, lots of extra voice. Okay, let me switch off the fan perhaps. All right. I'll try to improve upon that. So we'll be starting in 5-7 minutes. Okay, so just hang on. Any one of you had taken a class at 8:40 today? Anyone? All right, Hamza Riaz, thank you very much for responding. How was the class? Who was the teacher of IICT? And Anas, you taught programming fundamentals, and how was that? So Tayyab was an excellent teacher, Sarim. You must have enjoyed him. इनका masters बाहर से है, very humble guy. Ali Babar, okay. Ali Babar is the lab engineer, right? Class went well, yes. Okay, thank you, Sarim. Rahman, yeah, anyone else who was taking Ali Babar's lab? How was that? Ali Baba डांट डपट तो नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, things are moving in the right direction. Yeah, these are good people. You are in safe hand. जहाँ पे मुश्किल टीचर आएगा मुझे बता देना, मैं खुद ही बता दूंगा. I can tell you who's the hard taskmaster here. लेकिन I cannot do anything about that. You know, that's a personal trait. कोई इंसान होता है वो hard taskmaster होता है, कोई होता है जो नहीं होता है. So we need to live with every type of a person, you know. मैं तो बिल्कुल बहुत ही half of the semester I am very easy to go. Later half of the semester I am very strict. So you'll get both the flavors with me. Okay. Am I audible, people? आवाज आ रही है आप सबको? Anas, that shouldn't be a problem, you know. You can always talk to admission staff and they can change your IDs. But as far as you're going online, then that shouldn't be a problem. Because even if it is on, even if we reach back to campuses, even for this semester, the North campus has to go, or the city campus has to go to the main campus. So it will not make any difference. Yes, for the second semester, when we go back, hopefully the pandemic would be over by then, and we'll be reaching back to our own campuses like City North. At that time, you should tell them, okay, bhai, I was North, I'm going back. ठीक है Anas Anwar? Hopefully you are answered. अच्छा, ये आवाज जो ना आने का सिलसिला है ना, it would go both ways. देखिए, मेरी और आपकी जो कम्युनिकेशन है, इसमें दो
इंटरनेट का इम्पैक्ट आएगा। एक इंटरनेट जो मेरा है और एक इंटरनेट जो आपका है। सो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किसका इंटरनेट फॉल्ट पे जा रहा है। मैं क्लासें ले रहा हूँ पिछले स्प्रिंग से ना, जब हम पेंडेमिक में आए मार्च के मिड से, तो मैं मार्च के मिड से अब तक क्लासें घर से ले रहा हूँ, और इट्स नॉट इजी। लेकिन बहरहाल इंटरनेट वगैरह मुझे इतना बहुत इशू नहीं करता। एक आध दफा हुआ है कि क्लास ही नहीं ले पाया, कि मोबाइल डेटा भी नहीं चल रहा और इंटरनेट वाईफाई भी चला गया, थिंग्स कैन गो रॉन्ग। अदरवाइज इट इज गोइंग स्मूथ। तो आप जरा चेक कीजिए अपने एंड पे भी प्लीज, ठीक है? कैन आई गेट अ वन फ्रॉम द पीपल जिनको मेरी आवाज ठीक आ रही है? कैन यू प्लीज प्रेस वन इफ यू कैन हियर मी क्लियरली? हाँ, गुड माज, आप सही कह रहे हैं। आई हैव चेंज द माइक एज वेल। अभी कुछ बेहतर हो रहा है, मुझे बताइएगा। इज इट बेटर? श्योर आपको दिख रहा है क्या वो कुछ कम हुआ है? श्योर में कुछ कमी हुई है? ओके ओके। यस यस, यस यू आर राइट। अभी तो रिपेयरिंग वाला है। आई हैव 4 किड्स जो कि अभी अपनी क्लासों में मसरूफ हैं आपकी तरह। तो वो जब यहाँ पे घूम रहे होंगे तो you you'll get every other type of noise as well. Yeah, online classes be they have created their own impact on the family settings. Everyone is locking their own rooms, and everyone needs to have a tablet or a laptop to get their classes. अब फिर पता भी नहीं चलता कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या गेम देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो all sort of social issues are coming up. Shall I? We are on 12:44, so let's start at 12:50. Okay.
ऐसे जितने भी लोग हैं जिनका एडमिशन मेन में हुआ है, वो नॉर्थ में देख रहे हैं या नॉर्थ का मेन में देख रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए होना कि अभी ऑनलाइन में तो वैसे ही हम कहीं भी वो फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब हम क्लास में होंगे तो उससे भी फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सबको मेन कैंपस ही आना है फॉर दिस सेमेस्टर ना। तो ये जो सेकंड सेमेस्टर बाकी दोनों कैंपसेस में शुरू होंगे ये स्प्रिंग से होंगे, तो एक्चुअली इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि इस वक्त आप कहाँ हैं। यस, फॉर द सेकंड सेमेस्टर जब ये सेमेस्टर एंड हो तो आपको उन्हें अनाउंस करना होगा कि भाई आप मैं नॉर्थ का हूँ, मुझे वहाँ भेजिए, स्टफ लाइक दैट। इस वक्त आप जहाँ पे हैं वहाँ पे अपनी क्लास लें, जो आईडी आपकी लिखी हुई है क्योंकि आपकी अटेंडेंस वहीं पे होनी है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है जी, हम थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स वी गो रियली नाइस एंड स्लो, ओके। और इस कोर्स का एम आई ऑडिबल, एक तो बार बार ये थोड़ा याद दिलाना पड़ता है अपने आप को, जरा पूछ लेंगे एम आई ऑडिबल। पीपल कैन यू हियर मी? ओके, वंडरफुल, थैंक यू। आप लोग जरा मेरे साथ ना इंटरैक्टिव रहिएगा इस कोर्स में। we are discussing things, तो इसमें आपका ऑडिबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप अपनी बात मुझसे चैट बॉक्स में मुस्तकलन डिस्कस कर सकते हैं। और मैं तरीका भी ये रखूंगा कि 1-2 स्लाइड्स करके वील पॉज एंड देन वील टेक ए क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं, ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स, आई वेलकम एवरीथिंग। जरूरी नहीं है कि आपको कोई सवाल हो, आप बोलेंगे जनाब जो बात आपने कही है इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है, ये भी है, ये भी है। We all are learning, ठीक है। इस कोर्स में मैं टीचर नहीं हूँ, मैं फैसिलिटेटर हूँ। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा और उन चीजों को पे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और वो गुफ्तगू में हो सकता है यू हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू शेयर, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, ठीक है। और आप बिल्कुल कंफर्टेबली मुझसे इस पे गुफ्तगू अपनी जारी रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है जनाब? मोडस ऑपरेंडी ये होगा कि आप चैट में अपनी बात करते रहेंगे, मेरे सामने आपकी चैट मौजूद होगी, जहां मुझे जरूरत होगी फिर मैं उनसे आपका माइक आउट करेंगे, फिर उनसे भी बातचीत कर ली जाएगी। जैसा कि नाम, कोर्स का नाम क्या है भाई, जल्दी से, विजनरी लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो पहले तो इन 3 टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज विजन एंड व्हाट इज लीडरशिप एंड व्हाट इज मोटिवेशन। अगर आप गूगल करेंगे या आप इस एरिया पे मुख्तलिफ किताबें देखेंगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी और हर ऑथर की अपनी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। लेकिन इसमें जो हमारी डेफिनेशन है या जो इस कोर्स के लिए हम डेफिनेशन रख रहे हैं वो क्या है, उस पर हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे होनी है ये देखते हैं। विजन, पीटर सेंच इस एरिया का सबसे सेलिब्रेटेड ऑथर है। क्या नाम है जी? पीटर सेंच। वो कहता है कि द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वुड लाइक टू सी, द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वुड लाइक टू सी इज विजन। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि आंखें बंद करके डाउन द रोड, 10 years डाउन द रोड अपने आप को देखिए, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये विजन है। अच्छा, 10 years में शायद बहुत कहीं फर्क नहीं दिख रहा, ओके, 20 years डाउन द रोड देखिए, और क्या आपको दिख रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब द हाउस यू आर लिविंग इन, द कार यू आर ड्राइविंग, द पर्सन यू आर लिविंग योर लाइफ विद, द नंबर ऑफ किड्स दैट आर रनिंग हियर एंड देयर इन द हाउस, your parents around, a rooftop garden, I don't know, सही। तो ये सारी जो चीजें हैं ये विजन है। नौकरी कर रहे हैं कि अपना बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं या सेटल्ड लाइफ गुजार रहे हैं, पहाड़ों के दरमियान बैठ के कॉफी पी रहे हैं, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। तो विजन इज द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर यू वुड लाइक टू सी। तो भाई आप क्या मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये तो हमने विजन के नाम से तो ये नहीं पढ़ा, लेकिन ये सब तो हम सोचते हैं और हम इसको कुछ और कहते हैं। कुछ लोग इसको बोलेंगे लाइफ गोल्स, कुछ बोलेंगे जिंदगी का मकसद,
कुछ बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड ऐसी बहुत सारी चीजें, गोल्स, राइट। तो इन सब चीजों के साथ हमारी गुफ्तगू इस बात पे पहुंचती है कि ठीक है, वी कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम थिंग, बट डू वी रियली नीड इट? सवाल ये है। आप उसे गोल कह लीजिए, जिंदगी का मकसद कह लीजिए, आप उसे ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, आप उसे विजन कह लीजिए, डू वी रियली नीड इट? अच्छा, लेट मी पुट अप द पेन, लेट्स सी हाउ इट इंप्रूव्स। हुसैन साहब मैं कर रहा हूँ। जी, कुछ बेहतरी हुई हुसैन साहब? मच बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोग ये चाह रहे हैं कि बस अब मैं या तो एसी वाले कमरे में जाऊं या क्या करूं, या गर्मी में क्लास लूं? ओके, चलें। फॉर द फर्स्ट टर्मर्स, ठीक है, आई नीड टू प्रेजेंट माय बेस्ट फेस ना। वो तो असली दांत जो है वो टीचर्स 2 हफ्ते बाद दिखाते हैं अभी तो बिल्कुल अच्छे अच्छे। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉइस क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हुसैन साहब ने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये पंखा बंद करें तो मामला ठीक होंगे, तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए, अपने अपने घरों में बता दें। ठीक है हुसैन, तो हम बात ये कर रहे थे कि क्या जिस भी चीज को हम, अच्छा, ऑब्जेक्टिव बोलना, मकसद बोलना, गोल्स बोलना, ये स्मॉलर वर्ड्स हैं। विजन जो है इट्स अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। विजन इज लॉन्ग टर्म। विजन 2, 4, 5 साल की बात नहीं करता, विजन बात करता है 30 साल की। हाउ यू सी योरसेल्फ डाउन द रोड 30 years, विजन इस पे गुफ्तगू करता है। ठीक है, तो इसी पे गुफ्तगू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये था कि क्या आपको विजन चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए? डू वी नीड विजन? एंड व्हाट इफ वी डू नॉट हैव द विजन, तो क्या हुआ? फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये जरा सा मुझे आपसे सुनना है चैट बॉक्स में। पहले तो ये बता दें, विजन की जरूरत है या नहीं है? गिव मी यस और नो। अच्छा, जाहिर ऐसा बोल रहे हैं, हाँ भाई यस यस यस, ठीक है। तो अगर विजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये कोई लिख दे। हाँ, जगी साहब पूछे भाई विजन और ड्रीम में क्या फर्क है? ये गुफ्तगू हमारी तीसरी क्लास में आएगी और बहुत तवील गुफ्तगू होगी। जगी, यू नीड टू वेट अ बिट। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, विजन इज प्रैक्टिकल। विजन इज प्रैक्टिकल जकी, और विजन और ड्रीम में फर्क क्या है कि ड्रीम्स ही जो होते हैं वो एक्चुअल में, जो एक्चुअल ड्रीम्स होते हैं वो इंसान को सोने नहीं देते, वो सोने में नहीं आते हैं, वो सोने नहीं देते इंसान, और वो ही फिर हमें हमारे विजन की तरफ पुश करता है। तो ये गुफ्तगू आएगी आगे। ठीक है, काफी लोगों ने कहा कि भाई देखिए विजन नहीं होगा तो जिंदगी का मकसद ही नहीं है, व्हाई टू लिव बाय, एंड बात ठीक है किसी हद तक। पाकिस्तान बनना विजन था या ड्रीम था? वाह, गुड सवाल भाई हमजा रियाज साहब, गुड सवाल। मैं ये 3 लेटर्स एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप हमजा मुझसे, आपने और जकी आपने ये सवाल दोबारा पुट करना है, ठीक है? मीनिंगफुल हो जाए ना भाई जिंदगी, ठीक है, मीनिंगफुल, बामकसद जिसे कहते हैं ना उर्दू में, बामकसद इज अ मच बेटर वर्ड, मीनिंगफुल में इतनी बात नहीं आती। एनीवेज, लीडरशिप क्या होगी? लीडरशिप ये होती है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ लोगों को कन्विंस कर सकें। लीडरशिप की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन ही है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि उस पॉइंट ऑफ व्यू पे सिर्फ आपका फायदा है, तो आप बहुत ही, यानी कि अल्लाह ने आपको सलाहियत दी लेकिन आपने उस चीज को नेगेटिवली यूज कर लिया। तो लीडरशिप ट्रूली इज टू सी ऑल द पीपल अराउंड यू बिकमिंग बेटर देन योरसेल्फ। और एक पेरेंट्स का या टीचर्स का जो एक्चुअल रोल था
मैं है कहते हुए हिचकिचाता हूँ कि मुझे लगता है ना आज पेरेंट्स वैसे हैं ना टीचर्स, लेकिन जो एक्चुअल रोल था वो यही था, लीडरशिप। क्योंकि वो ड्रीम करते थे और हैं कि जो लोग उनके अतराफ हैं एज देयर चिल्ड्रंस, वो उनसे बेहतर है ना। पेरेंट्स यही स्ट्राइव करते हैं ना सारी जिंदगी, ये जो बच्चे हैं हमारे, ये हमसे बेहतर जिंदगी गुजारें, ये हमसे बेहतर हो जाए हर तरह से। और एक टीचर को भी ऐसा ही सोचना चाहिए। तो लीडरशिप इज अबाउट कन्विंसिंग पीपल on a point of view that is beneficial for them, not for you, not for the leader. That is beneficial for them and that would help them grow, becoming better than yourself. यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब हमारी गुफ्तगू होती है लास्ट, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि मुझे पता है मेरे लिए बेहतर क्या है, लेकिन क्या मैं उसको प्रैक्टिकली कर पा रहा हूं? मतलब हम सबको पता है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स हमें हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, हमारी स्लीपिंग हैबिट हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन क्या वी रियली टेक केयर ऑफ दैट? साइंस ये प्रूव करती है कि एज द सन गोज डाउन, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 hours वी शुड बी स्लीपिंग एंड वी शुड बी waking up at least 2 hours before the sun goes up. ये साइंस प्रूफ कर रही है। और दुनिया के जितने बड़े लोगों की मैंने बायोग्राफीज पढ़ी हैं, आई वेंट थ्रू मोर देन 70 या प्लस, तो उसमें चाहे वो गाना गाता था, चाहे वो डांस करता था, चाहे वो साइंटिस्ट था, चाहे वो एंटरप्रेन्योर था, चाहे वो पॉलिटिशियन था, चाहे वो बड़ा बिजनेस लीडर था, एक चीज कॉमन मैंने देखी, वो है कि दे ऑल स्टार्ट देयर डे एट 4 AM, और उनमें से 99% मुसलमान ही नहीं है। तो ये तो साइंस प्रूव करती है कि भाई स्लीप से अगर आपने बेस्ट आउटकम लेना है अपनी बॉडी के लिए, तो सूरज गुरूब होने के 2 घंटे बाद यू शुड बी स्लीपिंग, सूरज तुलू होने से 2 घंटे पहले यू शुड बी वेकिंग अप। अच्छा, ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मैं ऐसा करता हूँ? कतई नहीं। ठीक है, तो भी ये क्या मतलब हुआ कि जनाब वी नो व्हाट इज राइट, बट वी आर अनेबल टू डू व्हाट? वी आर अनेबल टू motivate ourselves to do it. So motivation is converting what is good for us and converting it in a physical effort. अभी आपने एक सवाल पूछा ना, ड्रीम और रियलिटी और ड्रीम और विजन। तो ड्रीम इज मोर अबाउट, उर्दू में एक चीज होती थी शेख चिल्ली का पुलाव, किसने इसका नाम सुना है? जिन्हें उर्दू स्टोरीज पढ़ी हैं बचपन में उन्होंने यकीनन सुना होगा। तो ये एक ऐसे साहब होते थे शेख चिल्ली साहब, जो कि डे ड्रीमिंग करते थे। डे ड्रीमिंग क्या हुई? आंखें बंद करके सोचते रहते थे मेरे साथ ऐसा अच्छा होगा, ऐसा अच्छा होगा, ऐसा अच्छा होगा। ठीक है, तो वो जो अच्छा हो रहा है, अच्छा होना है, अच्छा होना है, वो सिर्फ सोचने से अच्छा हो जाना अल्लाह करा दे, लेकिन ऐसा होना तो ही नहीं है ना, अनलेस यू प्रैक्टिकली मूव, अनलेस यू अप्लाई योरसेल्फ। So motivation is about physically applying yourself to something which is right. अब हमने इन तीनों टर्म्स को एक्सप्लेन कर लिया। तो इस कोर्स का मकसद ये है कि सबसे पहले विजन एस्टैब्लिश हो। तो हम सब जो हैं बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स अपना अपना विजन एस्टैब्लिश करेंगे 30 इयर्स का। ठीक कहा लगी आपने, मैंने यही कहा था। तो CR7 ठीक है। तो विजन सबसे पहले क्या हो गया? विजन हो गया जो आप अपना एस्टेब्लिश कर लेंगे 30 इयर्स बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। फिर उस विजन को अचीव करने के लिए आपको अपने अतराफ के लोगों की हेल्प चाहिए होगी।
तो उनको आपने लीडरशिप के रोल के जरिए कन्विंस करना होगा जो आप कह रहे हैं वो बेनिफिशियल है सबके लिए। और फिर तीसरी चीज ये होगी कि आपको अपने आप को अप्लाई करना होगा, आपको अपने आप को एक्चुअली अप्लाई करना होगा। Only then the people around you would believe you। भाई आज आप अपने घर में मौजूद है ना, आप इस क्लास के बाद बोलें जनाब अभी हमने BLM की क्लास ले लिया और अब हमें पता चल गया हमें जिंदगी में क्या चाहिए, और बोलेंगे जनाब ऐसा है कि अब मैंने सोच लिया है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। ठीक है, फेयर है ना। तो फिर आपके घर वाले आप पे भरोसा उसी वक्त करेंगे ना जब आप 8 घंटे उन्हें रियाज करते हुए नजर आएंगे। जब आप बोले आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई स्टडीज नाउ एंड यू सी मी कंकरिंग द वर्ल्ड इन 4 years टाइम, तो आपके पेरेंट्स को आप ये करते हुए नजर आएंगे पढ़ते हुए, तो ही दे वुड बिलीव, राइट? अदरवाइज दे वोंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लीडरशिप एक्शन से होती है, बातों से नहीं होती। आप बोले मैं बदल गया हूं, नहीं सर, आपके कहने से आप नहीं बदलते हुए मुझे नजर आ रहा है। आप जो आपका बदला हुआ रूटीन है, दैट वुड मेक मी बिलीव कि आप बदल। तो लीडरशिप इज बाय एक्शन, विजन इज अबाउट एस्टैब्लिशिंग एंड सीइंग वेयर यू वांट टू गो, सिंपल वर्ड्स में वेयर यू वांट टू गो। Or motivation is applying yourself. It's not about only knowing where you want to go. It's about making concrete actions and taking concrete steps towards your goal. ये बात सबको समझ में आ गई है तो 1 प्रेस कर लीजिए प्लीज। चलिए जबरदस्त, आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स, आई अप्रिशिएट। अच्छा जी, अब हम एक बात कर लेते हैं कि वो जो ड्रीम और विजन में फर्क था। तो ड्रीम अगर वो ड्रीम है जो आप सोते में देखते हैं, और अगर ड्रीम वो ड्रीम है जो शेख चिल्ली वाला ड्रीम है जिसमें कोई एक्शन स्टेप्स नहीं है, तो वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर वो ड्रीम है जो आपको सोने ना दे, और ड्रीम वो ड्रीम है जो आपसे एक्शनेबल स्टेप्स को करवा सके, तो वो यकीनन आपको लिए विजन के तौर पे एक्ट करे, आपको मोटिवेट करे। विजन इज अबाउट हैविंग अ मैप ऑफ योर डेस्टिनेशन, ठीक है। और वही चीज अगर प्रैक्टिकली आपको पुश कर रही है तो यू कैन कॉल इट अ ड्रीम। देयर इज नो हार्म इन लिमिटिंग आवरसेल्फ टू पर्टिकुलर जार्गन। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर आप उसे ए बोलेंगे, सी बोलेंगे, डी बोलें, अगर उससे आपकी जिंदगी में फर्क आ रहा है। ये जिंदगी में फर्क कैसे आता है कि लोग आपके अतराफ आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, है ना। तो वो चीज आपको पुश करती है कि टू डू मोर एंड मोर एंड मोर। तो ये जो हमारा कोर्स है, इसका जो कंटेंट है, ये लाइक आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 10 years, और इसका कंटेंट मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के अब इस जगह पहुंच गया। यानी कि अब जो डिलीवरी है, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं या उनका जो फ्लो है और उनको जो एक पैकेज बना दिया गया है, ये मेरी ज़हनी इख्तिरा है, यू मे लाइक इट और नॉट, लेकिन अब इस पैकेज का नाम ये है, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अ विनिंग रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ। सो ये हम सेल कर रहे हैं, आई सेल दिस ट्रेनिंग, और आप लोगों के लिए फ्री है। ये कैसे हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकें, और विनिंग रेसिपी का मतलब जाहिर है कामयाब तरीक़ेकार है। तो
अभी मैं आपके सामने ये पूरा फ्रेमवर्क प्रेजेंट करूंगा जिसमें बहुत सारे डब्बे डब्बे हैं, और फिर हम हर डब्बे को अलग-अलग पढ़ेंगे। ठीक है, हम हर डब्बे को क्या करेंगे, अलग-अलग पढ़ेंगे। अब इसमें आगे बात कैसे होनी है ये मैं आपको बताता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, ओके, फ्यू पीपल आर वेटिंग, को एडमिट कर लेते हैं पहले। ठीक, चलिए जी, तो ये जो विनिंग रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ है, ये जनाब इसका तरीक़ेकार कुछ ऐसा होगा। वो ये है इसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले मेरा मानना ऐसा है कि आपकी लाइफ सिर्फ उस वक्त प्रोडक्टिव हो सकती है जब आप 2 चीजों को कॉन्कर कर लें, काबू पा लें। और सबसे पहले आपने काबू पाना है अपने आप पे। हम में से कितनों को लगता है कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ? मुझे 1 प्रेस करके बताएं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू हैव कॉन्कर्ड योरसेल्फ? Actually, this is a very big thing to say, you know. This is a very big thing to say. Why? Because मतलब वो टिपिकल एटीट्यूड के जिसमें हम अपने आप से कहते थे कि मैं शाम में पढ़ूंगा या कल पढ़ूंगा या कुछ भी करूंगा, और हमें अपने अंदर से ही ये आवाज आती है कि भाई रहने दे, तुझसे नहीं होने का। तो ये किसकी आवाज होती है जो हमें ये बताती है कि हालांकि हम अपने आप से कह रहे हैं मैं कल ये करूंगा, और खासतौर पे पढ़ाई के लिए, तो वो जो आवाज है वो आपको ये बताती है कि भाई रहने दे, तुझसे नहीं होने का, you cannot do it man। तो ये जो आवाज है ये वो है वोकल जो आप जो सच बोल रहे हैं ना, who knows you inside out and who knows कि ये आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आवाज है ना, इसको हमने अपने हक में लाना है। तो जब हम अपने आप से कहें कि मैं ये करूंगा, तो अंदर से कोई आवाज ना आए और हमें 100% यकीन हो गया हम ये कर लेंगे। दिस इज कॉन्करिंग द सेल्फ। अच्छा, ये किसी और को नहीं पता चलता, ये सिर्फ हमें खुद को पता चलता। वी ऑल नो एग्जैक्टली हाउ मच कंट्रोल डू वी हैव। तो इसके लिए हमें दो एरियाज को पकड़ना है। एक तो हमें जब ये क्लियर हो जाए कि हम चाहते क्या है जिंदगी से, हमें कहाँ पहुंचना है, वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, कहाँ पहुंचना है और क्या करना है। जब ये 2 बातें मेरे बिल्कुल अंदर उतर जाएंगी तो फेसबुक पे 4 घंटे नहीं गुजरेंगे, फिर पठान के ढाबे पे 3 घंटे नहीं गुजरेंगे, फिर 2 फिल्में एक साथ नहीं देखी जाएंगी, फिर चैन नहीं आएगा। जब वाकयातन ये बात अंदर उतर गई कि कहाँ जाना है और क्या करना है, फिर मेरे पास टाइम पास करने के लिए नहीं होगा। पहले आजा टाइम पास करते हैं, फिर तो आप टाइम को पास नहीं कर रहे होंगे, फिर तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। सही है? आई होप आई एम रीचिंग वेयर यू आर। सही है? तो ये स्टेट जब आए तो आप समझें कॉन्कर द सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हैं। 100% तो होना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े वली अल्लाह, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ये कहते हैं कि नहीं जी, वी आर स्टिल अवे। तो लेकिन एक सफर है जिसको शुरू होना है, और उसे जितनी जल्दी शुरू हो जाए वो अच्छा है।
उर्दू वाला सफर. So destiny may reach or may not, but every step will bring us closer to the destiny. तो यही बहुत पॉजिटिव बात है. दूसरी जो हमारी गुफ्तगू है वो है कॉन्कर द वर्ल्ड. कॉन्कर द वर्ल्ड की गुफ्तगू हमारी है कि जब हमारा अपने ऊपर काबू आ जाएगा तो ही हम दुनिया पे काबू करने का सोचेंगे. है, अभी तो हमारा हाल ये है कि हम अपनी मर्जी से अपने दिल से कुछ करा नहीं सकते और दूसरों के दिलों पे काबू करने के ख्वाब है हमारे. तो इससे चाइल्ड्स ड्रीम है ना. तो सबसे पहले जब अपने ऊपर काबू करने की मंजिल पे चल निकलेंगे, अपने आप को फतह कर लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे, तो फिर हमारी गुफ्तगू इस बात की तरफ बढ़ती है कि हाउ टू कॉन्कर द वर्ल्ड. और उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हाउ टू विन रिलेशनशिप्स, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ भी नहीं जीत सकते. दुनिया में जो इतने सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने सबसे पहले रिलेशनशिप को विन किया, तो उन्होंने किसी और चीज को विन किया. हाउ टू विन रिलेशनशिप्स दैट वन. और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फेलियर ना हो. तो उस फेलियर को कैसे फेस करना है और उससे आगे कैसे बढ़ना है, दैट्स द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये वो इकबाल ने कहा था ना कि तंदिए बादे मखालिफ से ना घबराए अफाक, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. इसी तरह की कोई बात थी, ये एग्जैक्ट नहीं, लेकिन इसका मकसद यही है कि एडवर्सिटी वुड कम. इसका मकसद ये है कि चीजें बदलेंगी. ठीक है जी. और इसका मतलब ये है कि मुश्किलें आएंगी और जो आपने सोचा है वैसा नहीं होगा और रिजल्ट्स आपके फेवर में बाज़ दफा नहीं होंगे. उस वक्त अपने आप को कैसे सीधे रास्ते पे रखना है, कैसे मोटिवेट रखना है और अपने सफर को जारी रखना है, दैट्स इम्पोर्टेंट. आखिरी जो इसमें बॉक्स है वो है वैलिडेशन प्रिंसिपल्स. क्योंकि ये मेरा अपना फ्रेमवर्क है तो मैंने इसका नाम रखा है वैलिडेशन प्रिंसिपल्स. वैलिडेशन प्रिंसिपल्स को से मेरी मुराद ये है कि सब कुछ जो हम करेंगे इसको वैलिडेट करने के लिए कोई फिलॉसफी मौजूद. अब अगर आप इसी उसको देखिए, वैलिडेशन प्रिंसिपल्स ये हैं कि कोई डिवाइन स्क्रिप्ट या दुनिया में रहने के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, भाई सच बोलो, धोखा ना दो, किसी का हक ना मारो, किसी को तकलीफ ना दो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के प्रिंसिपल्स. और अगर आप रिलीजन पे बिलीव करते हैं तो रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके ऊपर के चारों डब्बों को वैलिडेट कर सकें, आपके प्रोसेस को, आपके एक्शन स्टेप्स को कि सच और सही होने की गवाही दे सकें. ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही? अच्छा, आवाज नहीं आ रही. ओके, तो मैंने आपसे अर्ज किया कि जो वैलिडेशन प्रिंसिपल्स हैं ये बताते हैं कि जो भी आपके एक्शन स्टेप्स आपने तय किए, आपने ये तय किया मुझे यहाँ जाना, फिर आपने कुछ एक्शन स्टेप्स तय किए कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, फिर आपने मुख्तलिफ लोगों से ताल्लुकात भी बेहतर किए और आप फेल हुए तो आपने उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी भी बनाई. ये सारे जो एक्शन आपने लिए इन 4 बॉक्सेस में जो कि थर्ड लेयर पे मौजूद हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपके इन एक्शंस को वैलिडेट करें कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. अब वो 2 ही तरह के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं. या तो आप किसी डिवाइन रिलीजन को मान लें और उसकी फिलॉसफी को पे अपने एक्शंस को इवैल्यूएट कर लें, या जो जनरली एक्सेप्टेबल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी सोसाइटी को गवर्न करते हैं कि भाई सच बोलिए, किसी को तकलीफ ना दीजिए, किसी का हक ना मारिए, झूठ ना बोलिए, यू नो. तो उन प्रिंसिपल्स पे आप अपने एक्शंस को इवैल्यूएट कर लीजिए, या किसी डिवाइन रिलीजन के
फिलॉसफी पे एवेलुएट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हो सकता है आप ये चारों काम कर जाएं लेकिन आपकी जात से माशरे को और जो लोग आपके अतराफ हैं उन्हें सरासर नुकसान। जी जी, अब हम ये कैसे पता चलेगा हम राइट चॉइसेस कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए पूरा एक प्रिंसिपल है ना, ये इस बॉक्स में जब हम आएंगे ना वेयर टू गो, इसमें हम विजन की पूरी तफसील में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम राइट ट्रैक पे हैं या नहीं हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? तो वैलिडेशन प्रिंसिपल्स की अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देके यहाँ पे अपनी गुफ्तगू को खत्म कर लूँ इस स्लाइड की, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं ना, हमें हर बॉक्स के अंदर तफसील में जाना है। आप यूं समझेंगे हर बॉक्स के अंदर दो दो क्लासें होंगी। तो वैलिडेशन प्रिंसिपल्स की बात ये कर लूं, सपोज करें आपने कॉन्कर द सेल्फ किया। कॉन्कर द सेल्फ में आपने कहा कि जनाब मैं अब फजर से 2 घंटे पहले उठूंगा, फजर पढ़ना मेरा काम नहीं है लेकिन मैं उठूंगा और मैं एक्सरसाइज करूंगा और मैं अपने आप को फिजिकली फिट करूंगा और मैं वेट ट्रेनिंग करूंगा और मैं फोकस की एक्सरसाइजेस करूंगा और मैं कुछ योगा करूंगा। मकसद क्या था, विजन ये था कि मैंने कोई उल्टा काम करना है। सपोज बैंक में डाका डालना, बैंक रॉबरी हम प्लान कर रहे हैं। बैंक रॉबरी से कौन सी चीज जहन में आती है इस वक्त जिसके सीजन का सब इंतजार कर रहे हैं? अब तक मुझे जवाब मिल जाना चाहिए था वैसे। ये आना शुरू हो गया भाई। ठीक है, मनी हाइस्ट, हालांकि इसका स्पेनिश नेम वो नाम ज्यादा अच्छा था लेकिन चले ये भी चलता है। हाँ, ला कासा दी पापो, सही बात है, ये ज्यादा अच्छा। तो हाउस ऑफ पेपर है ना, दैट्स व्हाट इट ट्रांसलेट्स टू। तो ये हमने प्लान कर लिया भाई। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, अपनी स्किल्स डेवलप की और गाड़ी वाड़ी चलाने की सीखा, बहुत अच्छी वाली, और एमिनेशन की ट्रेनिंग, और फिर मैंने एक टीम बनाई, उसमें मुख्तलिफ स्किल सेट के लोग लिए, और फिर ये सब कुछ प्लान करके और फाइनली आई हैड अ सक्सेसफुल लॉटरी। तो इसमें सब कुछ हुआ, ये जो थर्ड ईयर के बॉक्सेस हैं सारे हुए, वेयर टू गो भी हुआ, व्हाट टू डू भी हुआ, हाउ टू विन रिलेशनशिप्स भी हुआ, हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर भी हुआ। लेकिन क्या दुनिया का कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का प्रिंसिपल उसको सही कहेगा? तो वो वैलिडेशन प्रिंसिपल्स पे नॉकआउट हो जाएगा ये सब कुछ। तो इस वजह से वैलिडेशन प्रिंसिपल्स हमें ट्रू नॉर्थ पॉइंट करते हैं। हर वक्त हमें ये पता चले कि ये जो स्टेप मैं ले रहा हूँ ये ठीक है या नहीं, ये सही है या नहीं। हो सकता है मेरा फायदा हो रहा हो लेकिन क्या हो सकता है वो ठीक ना हो। सो दैट्स हाउ इट इज। ये फ्रेमवर्क ओवरऑल जितनों को समझ आ गया है, गिव मी वन प्लीज। अच्छा जी, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नहीं आया कि आप एक और दफा समराइज कर देंगे। Because what exactly is your question? I'm all willing to reply, but you need to put a question to get an answer.
And Raj, you have a question? I'm waiting. चलें, हम आगे कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो ओवरऑल प्रिंसिपल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब ये यहाँ तक पहुंचे कैसे, हाउ आई ड्राइव दिस, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स को जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, माय जर्नी स्टार्टेड, पता नहीं यू वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस और नॉट। अच्छा, फाइनली दिबाद हैज पुट अप क्वेश्चन कि वैलिडेशन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। चलो पहले मैं इस पे बात कर देता हूँ। वैलिडेशन प्रिंसिपल्स ये हैं कि मेरे स्टेप्स जो हैं, जो भी एक्शन स्टेप्स हैं जो मैं अपने विजन के अगेंस्ट में ले रहा हूँ, मेरा विजन ड्राइव करवा के दे रहा है मुझे एक्शन स्टेप्स, वो ठीक है या नहीं। मतलब कि क्या सोसाइटी के लिए उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। आई मीन कि अगर मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ तो जाहिर है आई कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी, बट इज इट गुड और नॉट, या और भी ऐसी जो भी चीजें। तो वैलिडेशन प्रिंसिपल्स की मैंने बात ये की कि जो जनरली एक्सेप्टेबल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया में हर जगह अप्लाई होते हैं, उनको उन पे आप वैलिडेट कर लें अपने एक्शन स्टेप्स को। या आप रिलीजन से को अगर मानते हैं तो आप रिलीजन को कर लें, किसी भी डिवाइन रिलीजन की लर्निंग्स को, की इंस्ट्रक्शंस पे आप अपने एक्शन स्टेप्स को देखें। ये थे वैलिडेशन प्रिंसिपल। अच्छा, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये कैसे बना भाई? ये फ्रेमवर्क कैसे बना कि आई स्टार्टेड टू दिस करियर, मतलब मैं आई वाज इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो मैं IBA में इवनिंग में पढ़ने गया तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ सॉफ्टवेयर हाउस की नौकरी के साथ IBA की शाम की पढ़ाई मुमकिन नहीं थी, बिकॉज दोज आर लॉन्ग आवर्स। तो मैंने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर दिया ताकि आई कैन बी फ्री बाय 5, और I immediately realized that this is what I want to do for the rest of my life. So हालांकि उसके बाद like after having my MBA from IBA, I would have joined any corporate world, but फैसला हो गया था कि इसी में मजा आता ये करें। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे क्या चीजें दिखी, मुझे देखा कि स्टूडेंट्स की लो सेल्फ एस्टीम है, उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं। दैट्स वन, ये मुझे सबसे खतरनाक बात लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा करें ना करें, लेकिन आप पे यकीन तो ये रखें कि जिस दिन मैंने अपने आप को अप्लाई किया, जिस दिन मैंने अपने आप पे फोकस कर लिया, उस दिन मैं कर लूंगा। एंड देन जीरो सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर यकीन नहीं है कि मैं अकेले कुछ कर सकता हूँ, कैन आई सॉल्व एनी वर्ल्डली प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। और बहुत ज्यादा कंसर्न बच्चों का है जनरेशन गैप को लेके कि पेरेंट्स को मेरी बात समझ नहीं आती, बड़े भाई को मेरी बात समझ नहीं आती, और हम करेंगे क्या, हम पास आउट होने जा रहे हैं, व्हाट वुड बी आवर फ्यूचर एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये उनका, और जो ड्रीम वो कर रहे थे वो ये था कि जिंदगी बन जाएगी अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर साइंस एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है कि मल्टीनेशनल इज नो मोर अ ड्रीम फॉर अ कंप्यूटर साइंस पर्सन। Software houses are paying much more than a multinational person, and you are on your own. You can do free stuff, you can do online things, and you can do much more. जब मैंने इन सब बातों पे गौर किया और फिर जो बाहर वाली यूनिवर्सिटीज में गया, देखा, पोस्ट डॉक किया, बैचलर्स के करिकुलम देखे और जगहों पे, आई रियलाइज कि वी आर टू टेक्निकल। हम 40 में से 40 के 40 कोर्स टेक्निकल पढ़ाते हैं। हम लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर को शेप करने के लिए भी हार्डली हैव एनी कोर्स, और सॉफ्ट स्किल्स की इंप्रूवमेंट की कोई बात नहीं होती। हालांकि सॉफ्ट स्किल्स गवर्न करती हैं सारी दुनिया को। हाउ यू टॉक, हाउ यू राइट इज फार 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 मोर इम्पोर्टेंट स्किल एज कम्पेयर टू नोइंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सिर्फ एक जगह अप्लाई होगी, लेकिन अपने आइडिया को दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए यू नीड टू हैव सॉफ्ट स्किल्स, यू नीड टू हैव एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, एंड you should be able to have a control on your behavior. So इन चीजों को देखते हुए उस वक्त के जो डीन थे और यहाँ वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो इस वक्त IOBM के रेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान हैदर, तो उनके साथ मिलकर ये एक करिकुलम डिजाइन हुआ जिसमें हमने कुछ चीजें कराना शुरू। अच्छा, जब ये चीजें कराने शुरू हुई तो मुस्तकिल वी वर लर्निंग ऑफ कोर्स, और वो जो लर्निंग थी हमारी वो इस तरह चल रही थी कि
पढ़ा रहे थे मुख्तलिफ चीजें कि ये पढ़ाएं पढ़ा के देख रहे थे और खुद भी सीख रहे थे। आई वेंट थ्रू वेरियस ट्रेनिंग्स जिन्होंने मेरी अपनी जिंदगी में बहुत डिफरेंस क्रिएट किया। फिर उनको जब लर्न किया तो फिर शेयर करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, और फिर बच्चों के एटीट्यूड को, नंबर्स को, बिहेवियर्स को इवेलुएट किया, असेसमेंट्स की, और बड़ों को भी पढ़ाया। आई टीच ऑल दिस टू ग्रोन अप्स एज अ ट्रेनिंग। मैं सीनियर मैनेजर्स को कॉर्पोरेट में ये पढ़ा रहा होता हूँ सब। तो फिर एक फीडबैक लूप हुआ कि असेसमेंट से देखा, अच्छा जी ये इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो ये कंटेंट ऐड कर दें। एक कंपनी है टाइमलैंडर्स, उनसे बड़ी हेल्प मिली, उनका बहुत कुछ सारा करिकुलम इसमें कंटेंट हमने यूज किया। तो ये एक फाइनल शेप आ गई। अब इसमें जो कुछ अच्छा होने जाएगा ना, उसकी सारी जिम्मेदारी उन बड़े लोगों को है जिनके काम को मैंने इस एक फ्रेमवर्क में जमा किया है। उसमें सुलेमान अहमद साहब हैं, उसमें स्टीवन कवी हैं, उसमें पीटर सेंच हैं, उसमें और बहुत सारे सेलिब्रेटेड ऑथर्स हैं। ठीक है जी। और इसमें जो भी कमी बताई है वो सिर्फ मेरी है। ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो हमारे सामने है। टीचिंग और कोचिंग में फर्क होता है। टीचिंग जो है ये इस तरह की चीज है जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। कोचिंग जो है वो साथ साथ चलती है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने मुस्तकलन अपना जो फ्रेमवर्क बनाया 30 इयर्स का, उसको वो मुझसे वैलिडेट कराते रहे हर साल। यानी कि इस वक्त हमारा वन ऑफ ए वेरी सक्सेसफुल ग्रेजुएट जिसने कोई 7 साल पहले मुझसे ये BLM पढ़ा था और इस वक्त वो PhD कर रहा है मेरे साथ। यानी कि 7 साल पहले वो 8 साल पहले मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में था और इस वक्त वो PhD कर रहा है और हमारे यहाँ विजिटिंग पढ़ाता भी है और एक बड़ी IT कंपनी में इस माशाल्लाह रीच टू द मिडिल मैनेजमेंट, मेकिंग अराउंड कोई 2 लाख रुपए बना रहा होगा। तो उसके साथ एक ताल्लुक रहा कि उसने जो BLM में अपना फ्रेमवर्क बनाया था वो हम वैलिडेट करते रहे और उसने फिर वो शेयर भी किया अभी कोई 1 साल पहले कि उसने जो 5 इयर्स का प्लान बनाया था उसने वो सब कुछ अचीव किया। तो कोचिंग में एक दफा पढ़ाना नहीं होता। कोचिंग में यू हैव अ कंटिन्यूअस इंटरैक्शन जिससे, और आप उन जो करंट सर्कमस्टेंसेस है उसके बेस पे अपने प्लान्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं। इट्स अ लॉन्ग वे। लाइफ कोचिंग जिस तरह की जाती है उस तरह की चीज है। तो ये है दैट्स हाउ द फ्रेमवर्क इज बीइंग बिल्ट। ठीक है जी। और अब आप पढ़े हैं तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसकी वैलिडिटी क्या है। ठीक है। प्रोडक्टिव लाइफ की जो एक्सप्लेनेशन हम यहाँ लेते हैं वो ये यहाँ पे मौजूद है कि जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि a person who is more effective in a goal oriented setting, ठीक है जी, और जो अपनी लाइफ को क्या कर सके यानी कि एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जिंदगी गुजारे और ज्यादा आउटपुट जनरेट करे। प्रोडक्शन इज अबाउट जनरेटिंग आउटपुट्स। ठीक है। लेकिन इस आउटपुट में वो कोई उल्टे काम ना कर रहा हो बल्कि उसके वैलिडेशन प्रिंसिपल्स के साथ वो ये काम सारे कर रहा। और उसका तरीका ये होगा कि वो ये फोकस कर सके कि उसके लिए इम्पोर्टेंट टास्क क्या हैं और वो उन इम्पोर्टेंट टास्क को इम्पोर्टेंट दे सके। और इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन वो नहीं है जो आज तक आप लोग समझते रहे। तो इट्स मच डिफरेंट। इम्पोर्टेंट वो टास्क होते हैं जो आपके अंदर वैल्यू क्रिएट करें और आपकी प्रोग्रेशन में डायरेक्टली उनका इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है। तो हम बहुत सारे चीजों को जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होती इम्पोर्टेंट इसलिए देते हैं कि अगर उस वक्त ना की जाए तो वो बाद में नहीं हो सकती। तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इम्पोर्टेंट इज समथिंग विच डायरेक्टली एड्स वैल्यू टू योर लाइफ एंड विच डायरेक्टली एड्स which directly helps you to progress in your life. So that is important. जबकि हम ऐसा बहुत कम करते हैं। हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, जो चीज सक पे आ गई वो कर ली। हमारा डे प्लान नहीं होता। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बस सुबह उठते हैं, नाश्ता देखते हैं क्या करना है, कैसे वक्त पास करना है। ऑलवेज से दैट कि टाइम पास करने का हम टाइम पास नहीं करते, हम टाइम को फेल कर देते हैं। तो टाइम को पास अगर हम कर रहे हो तो हम हर गुजरते दिन वी शुड बी गेटिंग क्लोजर टू आवर गोल्स। लेकिन जब गोल ही ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब इसकी बिल्कुल सीधी सी एग्जांपल ये हो सकती है कि
कि अगर आप घर से निकले और आप अपने दोस्त के जा रहे हैं, तो जैसे ही आप घर से निकलेंगे either you'll gonna make a left or a right or you'll go straight, ऐसे ही होगा ना। तो ये फैसला कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये इस बात पे तय होता है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका दोस्त का घर किधर। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि दोस्त का घर किधर, तो फिर आप लेफ्ट जाइए या राइट जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल इसी तरह जब हमारी सुबह होती है, तो चूंकि हमें ये पता ही नहीं है कि आज के दिन क्या करना है, तो हम कुछ भी करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चलता है कि हमें आज के क्या दिन है, कुछ दिन होते हैं ना जिसमें घर में कोई तकलीफ होती है, तो सुबह ही सबको सारे काम असाइन हो चुके होते हैं, उस दिन सुबह भी जल्दी होती है कि जिस दिन कहीं पिकनिक पे जाना हो उस दिन सुबह सबकी जल्दी हो जाएगी और बहुत स्केड्यूल्ड दिन गुजर जाएगा। व्हाई कांट वी हैव एवरी डे लाइक दैट? उसकी रीजन ये है कि हर दिन हमारे पास काम नहीं है, और ये काम ना होना ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत काम है। काम ना होने वाला बात तो वो करे जिसको जिंदगी से कुछ चाहिए ना हो, और अगर हमें वो सब कुछ चाहिए जो हमें चाहिए, तो फिर हमारा दिन उसी के मुताबिक होगा। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी जगह खड़े खड़े जंप करें, तो शायद आप 2 या 3 फीट की जंप कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये चाहूँ कि आप 5 फीट की जंप करें, तो आप कहेंगे कि सर मैं थोड़ा सा भाग के आऊँ। तो ये जो भागना है ना, ये प्रिपरेशन है। तो जिसको जितनी लंबी छलांग लगानी है उसको उतनी दूर से भाग के आना है। अब हर आदमी खुद तय कर ले कि उसे क्या चाहिए जिंदगी से। अगर आपको ज्यादा कुछ चाहिए तो आपको ज्यादा भागना है, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए आप खड़े खड़े भी छलांग लगा सकते हैं। लेकिन फिर आप ये एतराज मत कीजिएगा कि किसी और ने लंबी छलांग लगाया। होता यही है कि हम अपने आप को ये दिलासा रहते हैं, आई एम कंटेन्ड, आई एम कंटेन्ड, आई एम हैप्पी। लेकिन जब किसी दूसरे को कुछ आगे बढ़ता देखते हैं तो दिल में ये ख्याल आता है हम क्यों नहीं है वहां पे। तो भाई जिसको जितनी लंबी छलांग लगानी है उसको उतनी दूर से भागना है। बात सिर्फ इतनी सी। ठीक है जनाब, गिव मी 1 फॉर दिस प्लीज। तो आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसकी आखिरी स्लाइड यही है कि जनाब अपने आप से 2 सवाल कर लीजिए आप लोग। तो ये 2 सवाल लिखे हुए यहाँ पे। क्या आप एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं? और अगर आप गुजार रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं गुजार रहे तो क्या आपको गुजारना चाहिए? ये है सवाल ऑफ कोर्स। और दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल क्या है कि हाउ टू मेक आवर लाइफ मोर प्रोडक्टिव। तो जिंदगी प्रोडक्टिव होती कैसे है? हाँ, ये बड़ा जबरदस्त जवाब है। मुझे पता ही नहीं कि मैं जिंदगी गुजार पा रहा हूँ प्रोडक्टिव या नहीं गुजार पा रहा। इसके लिए आपको अपने आप से 2-4 सवाल करने होंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रीन शो नहीं होती। लेट मी शेयर इट अगेन। So is it visible? आप लोगों में स्क्रीन शो हो रही है प्लीज? ठीक है। तो पहला सवाल ये हो गया, आर वी स्पेंडिंग ए प्रोडक्टिव लाइफ? मुझे भाई नहीं पता चल रहा। देखिए किसी न किसी हद तक तो हम सब प्रोडक्टिव हैं ही। इंटर कर लिया हम सब ने। मैंने पोस्ट डॉक कर लिया। ज़ाहिर है मेरी उम्र आपसे दोगुनी से ज्यादा होगी। I'm 42। तो हमने आपने अपनी ईयर ऑफ लाइफ के हिसाब से कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, मैंने कर लिया। लेकिन क्या इफ गिवन अ चांस टू रिवाइंड आवर लाइफ, तो क्या हम कुछ बेहतर कर पाएंगे? यकीनन हम कर पाएंगे, है ना। वी ऑल नोज what mistakes we have done, and if we improve upon those, if we get the chance to go back, so we'll be able to reach to the next level. That's one.
सेकंड हमारी जो बात है वो ये है कि हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ मोर प्रोडक्टिव, तो उसके लिए क्या करें, ज्यादा एफर्ट करें। दानियाल साहब कह रहे हैं कि सर मेहनत तो डोंकी भी करता है लेकिन हॉर्स जैसी मेहनत कैसे करें, तो बिल्ड द मसल्स ना, बिल्ड द मसल्स टू डू द मेहनत। अब मैं अगला सवाल, आपके सवाल का जवाब है जो स्लाइड पे मौजूद है, आपकी जिंदगी प्रोडक्टिव आपके ख्याल में कैसी होगी? अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो प्रोडक्टिव होगी, ज्यादा सीखेंगे तो होगी, ज्यादा तफरी करेंगे तो होगी, या ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे तो होगी? लेकिन दुनिया जो है ना बहुत ही क्रूर प्लेस है, नोबडी एक्चुअली कंसर्न्स कि आपने कितनी मेहनत की है, पीपल लुक आफ्टर द रिजल्ट्स, ठीक है जी। और रिजल्ट्स आमतौर पे जो आपको मिलेंगे वो आपके हाथ में ही नहीं, ठीक है जी। तो लेकिन एग्जैक्टली हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत रायगा नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं जो आप मेहनत करते हैं अगर एग्जैक्टली वहां पे रिजल्ट ना मिले तो कहीं और तो मिल ही जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन जो सीखेंगे एफर्ट करेंगे ये तो करना ही पड़ेगा ना। असल बात ये है कि डायरेक्टेड एफर्ट, इस सवाल का जो जवाब है वो है वर्किंग स्मार्ट नॉट हार्ड। अब ये भी एक कंफ्यूजन है अनस अनवर साहब, वर्किंग स्मार्ट, आई डोंट बाय दिस, वर्किंग स्मार्ट इज व्हाट? मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ डायरेक्टेड एफर्ट करें, देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ। कोई आपको 2 रुपए नहीं देगा जनाब, ठीक है, तो देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ, तो इसलिए डायरेक्टेड एफर्ट्स आर इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अगर जमीन के 10 फीट नीचे पानी है और मैं आपसे कहूं कि आप पानी निकालिए, तो अगर आप 1-1 फीट के 10 गड्ढे खोदेंगे तो क्या पानी आ जाएगा? लेट मी पुट माई क्वेश्चन अगेन। अगर जमीन के 10 फीट नीचे पानी है, इफ आई आस्क यू टू डिग द वाटर आउट और आप 10 गड्ढे करते हैं 1-1 फीट के, तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, मेहनत तो आपने उतनी की। और अगर आप एक गड्ढा कर दें 10 फीट का तो पानी आ जाएगा ना, ठीक है। तो इससे सिंपल क्या बात है होती है कि सिर्फ एफर्ट करना काफी नहीं, सिर्फ एफर्ट करना काफी नहीं है, डायरेक्टेड एफर्ट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब एक चीज मैं और ऐड कर दूं, मैं आई डोंट वांट टू गेट मोर कॉम्प्लेक्स आज की क्लास में, बस ये लास्ट बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं, सिर्फ डायरेक्टेड एफर्ट भी काफी नहीं है, नोइंग व्हाट योर पीस ऑफ केक इज इम्पोर्टेंट। हो सकता है आप जमीन खोदने में अच्छे ना हो, लेकिन वो जो 10 फीट जमीन खोदने की एफर्ट है वो आप एक ऐसे काम में कर लें, वो आप एक ऐसे काम में कर लें जिससे यू कैन आस्क एनीवन एंड यू कैन पे दैट पर्सन टू गेट द वाटर आउट। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो आप सोचिए आप बेकिंग में अच्छे थे, तो आपने वो जो 10 फीट जमीन खोदने की मेहनत की उसकी सिंपल आधी मेहनत करके 5 केक बनाए जो आपने 2-2 हजार के भेज दिए, and as you have 10,000 rupees, so you can ask anyone and you can give 5,000 rupees and get that water out. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? So there are 2 things, एक है एफर्ट करना, एक है अपनी स्ट्रेंथ की फील्ड में एफर्ट करना, और तीसरा डायरेक्टेड एफर्ट करना। डायरेक्टेड एफर्ट तो लाजमी है, इस उससे तो बच ही नहीं सकते, उसके बगैर रिजल्ट नहीं है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी फील्ड क्या है जिसमें आपको मेहनत ही ना लगे, सही। तो यहां पे प्रोडक्टिव होने के लिए आपको डायरेक्टेड एफर्ट करनी है, दैट्स वन, बट knowing your area, knowing your field, knowing where you're good at is also utmost important. और ये जो विजन है ना, ये आपको यही तो बताता है कि आपकी फील्ड कौन सी। यहां तक बात खत्म करें जनाब।
क्योंकि इसके बाद हमने फ्रेमवर्क अपना देख लिया था और फिर हमारी गुफ्तगू अगले मंडे को शुरू होगी। आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। अटेंडेंस पहले वीक में मैं नहीं लगा रहा क्योंकि पता नहीं कुछ लोग आ रहे नहीं आ रहे, सेकेंड वीक से मैं अटेंडेंस लगाऊं। और अब वो कुछ लोगों को जो लिंक नहीं मिल रहा था वेबसाइट पे, मैंने पता किया था MIS से, तो मुझे अभी उनका मैसेज आया है कि दैट लिंक इज नाउ अवेलेबल, तो वो आप चेक कर सकते हैं और देख लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की वेबसाइट पे जाएंगे यू विल बी एबल टू फाइंड दैट लिंक। यानी कि अगर मैं यू वांट मी टू शो इट टू यू, ये बहुत ही डिफरेंट तरह के पेपर्स होते हैं एनालिसिस के। We will discuss के कैसे होंगे। दानिश यू आर क्लोजिंग, इतनी टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको बस ये शो करना चाह रहा हूँ कि आपको ये अपना स्केड्यूल कहाँ से मिलेगा ताकि आप अपनी आईडीज के हिसाब से उन टीचर्स से राब्ता कर लें। वैसे आपको मैसेजेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर भी आप ये राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला थोड़ी देर में आएगा आई गेस। अच्छा जी, मैं आपको ये दिखा दूं, शेयर स्क्रीन। मेरे ख्याल से ये मेरे उससे उठ के आ रहा है, लेट मी चेक। Here is the notice board, ठीक है। ये नोटिस बोर्ड आपको नजर आ रहा है और इस नोटिस बोर्ड पे जब आप जाएंगे, इस नोटिस बोर्ड पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने तमाम स्केड्यूल मिल जाएंगे। आपका जो भी स्केड्यूल है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसमें अपनी क्लास आईडीज के हिसाब से देख लीजिए, उसमें जूम की आईडीज वगैरह सब मौजूद। All right, people. चलें, so we can call it a day for today. हाँ, आज की VLM की क्लास का मैसेज इसलिए नहीं आया कि आई थॉट कि आप उसको देख सकेंगे। अच्छा, आप सिंपल कंप्यूटर साइंस की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो ऊपर टैब मौजूद है उसमें जो लास्ट टैब है वो नोटिस बोर्ड का है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। इट इज देयर, आई जस्ट वेरीफाइड, ओके। और अगली क्लास का इंशाल्लाह मैसेज भी है। अब तो आपको पता है ना कि लिंक कौन सा है, तो आप सिंपली वक्त पे ज्वाइन कीजिए। 12:30 एवरी मंडेज आर क्लास। ऑलराइट पीपल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हैव पेशेंस। बहुत कुछ चीज होगी, कुछ नहीं होगी, किताब का भी कोई टेंशन ना लें। तो इस हफ्ते जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ एंड टू यूनिवर्सिटी एंड टू द फैकल्टी एज वेल। तो चीजें इंशाल्लाह वुड इम्प्रूव। अटेंडेंस हम इसमें नहीं ले रहे हैं, अगले वीक से लेंगे ताकि किसी का नुकसान ना हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।